الذي أنقض ظهرك. اچھا، NHR کی مینجمنٹ، میڈم کا اسپیشل ٹائم نکالنا، میرے دوستوں بھائیوں کا تعاون، سب سے پہلے تو میں سب کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ تقریر وغیرہ کا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیسے ہوتی ہے، لیکن میں جنرل سی جو باتیں ہیں وہ کرتا ہوں۔ بیسیکلی جس آرگنائزیشن کے ساتھ ابھی میں بھی اٹیچ ہوا ہوں، میڈم کی کاوش ہے، یہ کافی ٹائم سے خدمت خلق کی ہے، سیدھی سیدھی، مطلب اس میں نہ تو کوئی لالچ ہے، نہ کوئی نام بنانے والی چیز ہے، اور نہ ہی کوئی اور ایسی سیاسی رنگ ہے یا مذہبی، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا بھی ایک ملاقات پہلے ہوئی میڈم سے، میرے خیال میں اس وقت اس سے ریلیٹڈ بھی میری تو نہیں تھی، 3 سال پہلے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور معاملہ آیا جس میں ہمیں ملنا پڑا میڈم سے، وہاں پہ بیٹھے، خیر وہ معاملہ بھی بہت احسن طریقے سے ٹھیک حل بھی ہو گیا، اور جو میں نے محسوس کیا کہ یہ بھی درد دل رکھ کے لوگوں کی خدمت ہی کرنا چاہتے ہیں۔ تو 2-3 مہینے سے یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا، میم کہہ رہی تھی کہ آ جائیں جوائن کر لیں، حالانکہ میں نے کہا نہیں، میں ساتھ ہی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، جب تک آپ حصہ نہیں بنتے اس وقت تک جو ہے نا مزہ نہیں ہے کام کرنے کا۔ تو مطلب لب لباب تو یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی خالصتاً، مطلب کوئی غریب ہے اس کی مدد کرنی، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کا ساتھ دینا، یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے اجتماعی معاشرتی، اس پہ بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے یا بغیر کسی سفارش کے مطلب ساتھ چل پڑنا، کوئی واقف ہے نا واقف ہے، کچھ بھی ہے، جہاں زیادتی ہے، کچھ گڑبڑ چل رہی ہے، فی سبیل اللہ اس کے ساتھ چل پڑنا۔ اور اسی جذبے کے تحت میں نے بھی ان کو جوائن کر لیا، اور یہی کوشش ہے کہ ہماری بھی، کہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی، یہ نہیں ہے کہ بڑا نام، بڑا عہدہ، یہ وہ چلیں، ایک تنظیمی معاملات الگ ہوتے ہیں، لیکن خالصتاً خدمت خلق کے لیے ان کو جوائن کیا گیا ہے۔ لہذا میں میڈم سے ملتمس ہوں کہ وہ بذات خود اس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو ویلکم، اور یہاں پر آ کے مجھے بڑا اچھا لگا، بہت اچھا ایک منظم نظام دیکھ کے اچھا لگا، بلکہ میں فرسٹ ٹائم بھی آئی تھی تو مجھے اس ٹائم پر بھی ایک بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا گیا تھا یہاں پہ، اور سعید صاحب سے میری ملاقات ہوئی، جیسے انہوں نے بتایا کہ دوبارہ جب ملاقات ہوئی تو میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس بندے سے میں کہاں پہ ملی ہوں، میں ان کو پہچان رہی ہوں کچھ، اور سیم مجھے عدیل جیسے لگے، تو میں نے عدیل کو میسج کیا کہ اس بندے کو آپ جانتے ہو یا نہیں جانتے، تو اس نے مجھے بتایا کہ میڈم یہ انہی کے آفس میں آپ بیٹھے تھے، اور وہ تصویریں اور ویڈیوز جو بنی ہوئی ہیں وہ انہی کے آفس میں۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ ہاں بالکل ہم لوگ پہلے بھی ہم لوگ مل چکے ہیں۔ تو سر کے ساتھ ہماری جو ملاقات ہوئی اس میں جیسے سر نے بتایا کہ وہ سارا معاملہ بہت اچھے منظم طریقے سے ہمارا حل ہوا، تو اس میں ہماری کارکردگی کم، سر کا اخلاق اور ان کی سچائی، ایمانداری، اور جیسے بندہ اپنی زبان کا پابند ہوتا ہے، یہ سارا کچھ تھا۔ اور انہوں نے، اگر ہم لوگ سارے بیٹھے تو انہوں نے ہمیں اتنی رسپیکٹ دی کہ آپ یقین مانیں کہ اس سارے معاملے کے بعد یہ وہ بندہ ہے جس بندے کی میں نے منت کی ہے کہ آپ NHR کو جوائن کریں۔ تو رہی بات NHR کی، تو NHR کا تعارف میں آپ لوگوں سے صرف اتنا سا کرواؤں گی کہ NHR نکلی ہے دنیا کو اپنا دوست بنانے کے لیے، NHR نکلی ہے مظلوم لوگوں کے اوپر سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے۔ ہم اس قدر مضبوط ہونا چاہتے ہیں کہ آج فلسطین کے اوپر جو معاملہ ہوا ہے، ہماری ایک آواز پر پوری دنیا لبیک کہے، اور وہ لبیک صرف اس چیز کے لیے ہوگی کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی شخص کسی شخص کو نہ سائیکولوجیکلی نہ فزیکلی ٹارچر کرے۔ جیسے ہم لوگ جذبات کے ساتھ بھی کسی کے نا ایسے مطلب کر دیتے ہیں کہ اگلا بندے کا دل ہی خفا ہو جاتا ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے، یا وہ اندر اندر پریشان ہو جاتا ہے، یا کسی کو ہم دباتے ہیں، ان چیزوں پر بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ NHR جب ہمارے ساتھ کوئی بندہ شامل ہوتا ہے، جیسے آپ لوگ سارے آئے، ہمارے لیے میں کوئی بڑی شخصیت نہیں ہوں، NHR صرف NHR وہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ NHR ہم رہیں نہ رہیں، NHR کا ویژن NHR رہے، اور انشاءاللہ جو ویژن لے کے میں چلی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یورپین جو UNO بنی ہوئی ہے
NHR इंशाल्लाह उसके मुकाबले में जाएगी और उससे ऊपर जाएगी। जो UNO उनका ज्यादा जो है वो झुकाव जो है वो यूरोप की तरफ है, मुसलमानों की तरफ नहीं है। अगर मुसलमानों की तरफ होता तो आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि मुसलमानों ने कभी किसी और मजहब के बच्चों को इस तरीके से उनका कत्ले आम किया हो। आज दिन तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जब भी हमने देखा है वो बच्चे मुसलमानों के मारे गए, जब भी हमने देखा है वो बच्चे थे मुसलमानों के, वो लोग थे मुसलमानों के जिनके ऊपर ड्रोन हमले किए गए। हम इन सारी चीजों के लिए खड़े हुए हैं। आप सबका सिर्फ हमारे साथ लब देख के देना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जब हम लोगों ने इस तंजीम का आगाज किया तो उसमें 3 चीजें हम लोगों ने मेन पे रखी कि ना तो हम फंड किसी से लेंगे, ना हम चैरिटी करेंगे, दोनों चीजें नहीं। कोई शख्स हमसे कोई गर्ज न रखे, हम भी किसी से कोई गर्ज न रखें, ताकि जो करप्शन वाला एक मामला जो पाकिस्तान के ऊपर डाला जाता है, हमारी तंजीम पूरी दुनिया में चली जाए तो कोई शख्स ये न कह सके कि NHR ने हमारा ये खा लिया, या NHR चैरिटी के लिए काम कर रही है, या NHR फंडिंग के लिए काम कर रही है। तो ये फंड इसलिए हम लोगों ने NHR से खत्म कर दिए। कोई शख्स किसी से कोई फंड न ले सकता है न दे सकता है। दूसरा विजन हम लोगों ने ये रखा कि आप लोग जब NHR के अंदर आते हैं, हमारी DP तक वो होती है जो NHR की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। उसकी वजह ये है कि हम नहीं चाहते कि पता चले कि कोई हिंदू हमारे साथ है, कोई सिख हमारे साथ है, कोई मुसलमान हमारे साथ है, कोई ईसाई हमारे साथ है। ये मज़ाहिब की बात हो रही है। हमने शख्सियात की रिस्पेक्ट करनी है, हमने मज़ाहिब की नहीं। हमने किसी अकीदे की रिस्पेक्ट नहीं करनी। हर एक शख्स हमारे लिए उतना ही मुहतरम है जितना कि मैं चाहती हूँ कि मैं किसी के लिए मुहतरम हूँ, जितना कि मैं अपनी जात के लिए इज्जत चाहती हूँ, इतनी ही इज्जत मैं चाहती हूँ कि हर एक शख्स दूसरे शख्स को दे। हम अक्सर कहते हैं कि आप लोगों का जो नंबर सोशल है, मतलब अगर एक सियासतदान है तो हम उनसे कहते हैं आप अपना नया नंबर हमें दें। जो नंबर आप तनवीन के साथ रजिस्टर करवाएं, आप अपने नंबर से अपनी सियासत करें। आप अगर किसी अकीदे से मुंसलिक हैं, आप उसके ऊपर अपने अकीदे की DP लगाएं। आप जो मर्जी आपकी पर्सनल लाइफ है उसके अंदर हमारा कोई दखल नहीं है, ना हम दखल देते हैं और ना हम किसी को दखल देने देते हैं। सबकी अपनी अपनी सियासी पार्टी, सबका अपना अपना मजहब, सबका अपना अपना अकीदा, लेकिन बतौर इंसान, इंसानियत के नाते हम सब एक हैं। ये है NHR। और NHR के अंदर दाखिल होने के लिए इस वक्त हम लोगों ने सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन फीस रखी थी वो 1000 थी, लेकिन चूंकि ये ममालिक में जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पर 14 कंट्रीज हमारी हो गई हैं जिसमें NHR स्टेब्लिशमेंट कायम हो चुकी है। और अल्लाह के फजल से अब हम लोग निकल रहे हैं इसको बाकायदा वहां पे रजिस्टर करवाने के लिए। टीम हमारी वहां पे भी तकरीबन 14 ममालिक में हमारी टीम तैयार हो चुकी है। और इंशाल्लाह मुझे बहुत ज्यादा यकीन है और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ। कोई शख्स जरा मुश्किल से कहता है या हंस लेता है कि अल्लाह ताला मेरी जिंदगी लंबी कर, मैं हमेशा कहती हूँ या अल्लाह मुझे इतनी लंबी जिंदगी दे कि जितना कुछ मैंने सोचा है वो सारा कुछ मैं अपनी आंखों से देखूं और वो पूरा हो जाए। और कभी जब इस NHR की तफ्तीश हो या इसकी तारीख के बारे में पढ़ा जाए तो वहां पर यह नाम आना चाहिए कि ये जिला अटक से शुरू हुई। जिला अटक के अंदर और जिला अटक के अंदर तहसील अटक में एक छोटा सा गांव था कामरा गांव की मैं रहायशी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना गांव नहीं छोड़ा। और जितना भी अल्लाह ताला मुझे दे दे, मैं अपना लाइफस्टाइल, अपना कुछ भी मैं चेंज करने वाली नहीं हूँ। मैं सारी जिंदगी ऐसे रहूंगी। याद रखिए, जिन लोगों के नाम आज दिन तक बरकरार हैं उन लोगों के पास अपनी जरूरत के अलावा कोई चीज नहीं थी। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने मौजूद है। और इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में भी मुझे मेरी जरूरत के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अब तक मैं चाहती हूँ कि कोई जमीन भी मेरे नाम पर ना हो, कोई चीज, बस इतनी मुझे चीज चाहिए कि जो मुझे सहूलत दे सके ताकि मैं काम अच्छे से कर सकूं। इससे ज्यादा मुझे दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए। और अगर हम निकले हैं तो मैं ये नहीं कहती कि हम मतलब ये काम करेंगे या वो नहीं करेंगे। हर जगह पे जहां पर हमारी जरूरत होगी पूरी NHR की टीम वहां पर आपको खड़ी नजर आएगी। चाहे आर्मी को हमारी जरूरत होगी, चाहे एयरफोर्स को हमारी जरूरत होगी, ISI को हमारी जरूरत होगी, FIA वालों को हमारी जरूरत होगी, चाहे पुलिस को हमारी जरूरत होगी। इस वक्त भी NHR तमाम इदारों के साथ मुंसलिक है और तमाम अदारे NHR के अंदर मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह NHR वो वाहिद तंजीम है पाकिस्तान की
जो बगैर फंड लिए तमाम इदारों को सपोर्ट कर रही है और तमाम इदारे NHR को साथ लेकर चलना चाहते हैं। और आप लोग जितने भी यहाँ पे मेंबरान आए, मैं आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगी कि NHR का मैंने आपसे तारुफ करवाया, आप लोग भी आए और NHR को ज्वाइन करें बाकायदा। और इसका काम करने का अंदाज इतना आसान है, छोटी सी बात मैं करूंगी कि एक बच्चा गुम हो जाता है, हमारे जो मेंबरान हैं हम कहते हैं हर गली में हमारा एक मेंबर हो, एक पोस्ट है वो उसको मैं लगा देती हूँ स्टेटस पे। हमारे साथ जितने भी लोग एफिलिएटेड, यकीन माने अगर वो झूठी भी होती है सच्ची होती है, पोस्ट लगाते साथ ही हमें वहां से एक बंदा कॉल करता है, लास्ट टाइम एक वो लड़के ने लड़की को कत्ल कर दिया, ठीक है, वो पोस्ट मैंने लगाई, उसने कहा मैडम ये मेरे घर के साथ घर है। हमें हमारी NHR ऐसी चाहिए कि जो बिल्कुल साफ और वाज़ेह चीज हम तक पहुंचाए और हम उस केस के हवाले से एक अच्छी अपनी कारकर्दगी शो। मतीन सर हमारे बड़े खास फौजी हैं सारे, जिनको एक मैसेज हम लगाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतीन सर जब से हमारे साथ हैं कि मुझे नहीं याद कि इस बंदे को मुझे कॉल करके बोलना पड़ा हो कि मतीन सर ये वाला काम है और आपने लाजमी करना है। यकीन माने हमेशा छोटा सा मैसेज लगाती हूँ, मतीन सर ये मसला है, ये नंबर है, देख लें, बस। उसके बाद वो मैं कहती हूँ कि मुझे दोबारा पूछना ही नहीं पड़ता कि ये काम हुआ या नहीं हुआ, ये पल पल की मुझे रिपोर्ट देते हैं और वो मसला हल करके उसके बाद फिर मुझे डन कर देते हैं। और यकीन माने कि कभी ऐसा भी नहीं हुआ मुझे करे कि मैंने मैसेज करके या कॉल करके शुक्रिया भी अदा किया हो, मैंने नहीं किया। और फिर भी इन्होंने जो है ना इस चीज को मतलब इतना कैरी किया हुआ है कि इनको शायद इस चीज का एहसास है कि मसरूफियत इतनी, इस कदर मेरी मसरूफियत ज्यादा है कि मैं मैसेजेस वगैरह या कॉल्स वगैरह मैं नहीं रिसीव कर सकती, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ज्यादातर जो है हम लोग मीटिंग्स में रहते हैं ज्यादातर। और एक बंदा, आपको पता है, एक बंदा अगर कोई मैसेज लगा देता है तो आगे सारी टीम है वो माशाल्लाह काम करती है। और हमारी टीम मेंबरान की सबसे बड़ी और मेन खूबी यही है कि इनको आप कोई सा भी काम कहेंगे आपको मिन्नत नहीं करनी पड़ेगी, ये सबसे बड़ी खूबी है कि ये तो ढूंढते हैं कि हमें कोई काम मिले। और इतना ज्यादा हमारी टीम एक दूसरे को अप्रिशिएट करती है कि जब भी ये छोटे से छोटा काम करते हैं, शेयर करते हैं, हम उसको इतना अप्रिशिएट करते हैं कि इनका दिल करता है कि हम और ज्यादा काम करें। तो बस इसी चीज को हम लोग लेके चल रहे हैं। और NHR का तारुफ मैंने आप लोगों के साथ करवा दिया, बहुत ज्यादा बात हो गई, बहुत ज्यादा शुक्रिया आप लोगों का आने का। तमाम माशाल्लाह ये हम देख रहे हैं जी, सईद भाई से जो एक मुलाकात हुई थी, आज सेकंड मुलाकात हो रही है, तो सारी मुझे सईद भाई नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। जिस तरह मैडम ने एक बात की कि एक जगह बैठे हुए और चीज़ों पे जो हम पे उन्होंने एक एतमाद किया था, उसी एतमाद को बहाल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज एक सईद भाई नहीं माशाल्लाह पूरा फतह जंग हम समझे हमारा है। तो इंशाल्लाह इसी तरह ये मिशन लेके इंशाल्लाह आगे चलेंगे। और NHR का जिस तरह मैडम ने बताया आपको अल्हम्दुलिल्लाह इस दावे से कि बड़े बड़े कोर्ट भी हैं, इदारे भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह डेली 5-6 जो है ना इंतज़ामिया के हवाले से मेरे पास केस आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहली पेशी में या दूसरी पेशी में अल्हम्दुलिल्लाह उसको रिजॉल्व करते हैं। तो उस मामले में किसी किस्म के भी, अगर आप कहें किसी के घर के लड़ाई झगड़े का मामला है, मियाँ बीवी का मसला है, किसी के बच्चे के, आजकल हालात ऐसे जा रहे हैं कि मोबाइल ने लोगों को ऐसा डिस्टर्ब किया हुआ है, बच्चा बाप की, बाप बेटे की नहीं मानता सुनता, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मामले में। इसके अलावा किसी भी नशे के हवाले से अगर किसी ने अपनी ट्रीटमेंट के हवाले से भी हमसे करना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको मुकम्मल तौर पे ऐसे केस अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं NHR में आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 1000 प्लस अल्हम्दुलिल्लाह जिरगों के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह हम रिजॉल्व कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम चाहते हैं कि जिस तरह हम अटक में बैठ के करते हैं, हमारे साथी फतह जंग में भी हों, पिंडी गेम में टीम जुड़ी हुई है माशाल्लाह, इसी तरह हसन अब्दाल भी काम कर रहा है, पूरा पाकिस्तान करे, पूरी दुनिया करे। जैसा देखें माशाल्लाह ये एक छोटी सी एफर्ट ये अटक शहर से निकली, अल्हम्दुलिल्लाह अभी 14 मुल्कों में जा चुकी है, तो मज़ीद अगर और मुल्कों में बढ़ेगी तो इंशाल्लाह ये कामयाबी और इसका सिला अल्लाह दुनिया में तो देगा, अल्लाह इसका सिला आखिरत में भी देगा, क्योंकि फरमाया गया कि अल्लाह ताला उस पे अपना अर्श का साया नसीब करेंगे जो किसी की मुश्किल को आसान करेगा। असल लुब लबाब अगर इस NHR का लफ्ज़ अगर कहा जाए तो ये लोगों की आसानी का एक ज़रिया है। तो इंशाल्लाह इसी मिशन पे अल्लाह हमें रखे और इंशाल्लाह इसी पे साबित कदमी भी दे, अल्लाह इस्तकामत दे, और आप भी इंशाल्लाह इसका हिस्सा ज़रूर बने। भले आप अभी इसका कोई ओहदा नहीं लेना चाहते, आप सपोर्टर बने, सपोर्टर बन के काम को, चीज़ को देखें, समझ आ जाए तो फिर अपने ओहदे के लिए बेशक तैयार हो जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जिनके सर पे सारी बहारें, जिनकी दम से सारी बहारें हैं, उनके ज़मानी साहब, मतीन साहब और चेयरमैन अटक और तमाम मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमानान, बल्कि आप तो मेज़बान हैं, मेहमान तो हम हैं।
अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश यह है कि NH4 के हवाले से बात हो रही है, तो मुझे तकरीबन 1.5-2 साल से मोहतरमा के बारे में मालूम हुआ। एक मीटिंग में गालबन, बल्कि एक इंटरव्यू मेरा हो रहा था, वो शायद इनका और मेरा इकट्ठा हुआ था व्हाट्सएप पे। तो हमारे गांव के लड़कों ने मतलब एक काविश की हुई थी, उस सिलसिले में उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया। तो उधर इन्होंने मुझे सुना, मैंने इनको सुना, तो बस तारें जुड़ गई। जब मिशन एक हो तो अल्लाह ताला खुद ब खुद बंदों को मिला देता है। जब इन्होंने मुझे मेरे मिशन को देखा, मैंने इनके मिशन को सुना, तो फिर हमारा आपस में क्लोज मुरासिम होते गए, होते होते आखिर इन्होंने मुझे कहा कि आप NH4 ज्वाइन करें। हालांकि मैं इनका सपोर्टर शुरू से आ रहा था, तकरीबन 1.5 साल से। तो इन्होंने कहा कि बाकायदा NH4 ज्वाइन करें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जिस तरह सईद साहब ने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, सपोर्टर हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, जब तक आप इसमें ओहदा नहीं लेंगे उस वक्त तक आपका सपोर्टर होने का हमें कोई फायदा नहीं। हम आपकी इस शख्सियत को कुछ है, इससे कुछ फायदा हासिल करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, जो आप हुक्म करें। तो बहरहाल फिर उन्होंने मुझे NH4 का कंप्लायंस सेल का चेयरमैन पंजाब बनाया। पहले तो उन्होंने मुझे पाकिस्तान का ऑफर किया, लेकिन मैंने कहा मैं इतने नहीं काबिल, लेकिन उन्होंने कहा चलो ठीक है, पंजाब तक तो आप रहे हैं। इन्होंने पंजाब को चेयरमैन कंप्लायंस सेल बनाया, और माशाल्लाह उसमें मैं अपनी ज़ुबान से नहीं कहता, तो बहरहाल ये खुद बताएंगी कि मैंने कितने अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी फराइज और सरंजाम दिए आज तक, और दे रहा हूँ इंशाल्लाह। तो मुझे इनके साथ आने का ज़रूरत क्यों पेश आई और इनके साथ मैंने तावन क्यों किया, कि जब मैंने देखा कि इनमें वो चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं। जितना जुल्म ज़्यादतियाँ दुनिया में हो रही हैं, उसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं, तो ये उसकी आवाज़ उठाने में पेश थी। और इनको एज ए औरत इतनी हिम्मत और जुर्रत देखते हुए मैंने इनका साथ देने का जो है तहिया किया, कि जब एक औरत होकर के इतनी जुर्रत और हिम्मत से काम ले रही हैं और एक जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं हर वक्त, तो हमें भी इनका साथ देना चाहिए। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करती हूँ कि आप भी बराए करम ऐसी बाहिम्मत औरत का बाजू बने। मैंने देखा है कि ये इनमें ये वो सलाहियत है कि जो इल्लामा इकबाल ने फरमाया था, वो शेर था इल्लामा इकबाल का, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वो ये इन जैसी शख्सियत होती हैं। तो बहरहाल हमारी दुआ है कि जिस तरह ये अब इस मिशन को आगे लेकर जा रही हैं, 14 ममालिक में इस वक्त हमारी तंजीमें माशाल्लाह रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। 14 ममालिक के रहने वाले लोग हमारे साथ मुंसलिक हो चुके हैं। परसों मेरे ख्याल 14 मुल्क हमारे पास ओमान हुआ था, परसों उनके साथ मीटिंग हुई थी। तो अब इंशाल्लाह अज़ीज़ अनकरीब हम पूरी दुनिया में छा जाएंगे, और जैसा इनका इरादा है दुआ करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुझे NH4 ज़बान पे आगे नहीं निकलता। UNO जिस तरह के मुसलमानों को दबा रही है वो सब आपको पता है। UNO के मुकाबले में हमने अपने आप को लेकर जाना है, कोशिश करनी है कि हम मुसलमानों की इतनी ताकत बनकर आवाज़ बने ताकि UNO भी हमारी बात सुने और उसे पता चले। देखें, वो जो कुछ करते हैं उसको इंसानी हकूक़ का नाम दिया जाता है। हम अगर अपने हकूक़ की बात करते हैं, हम अपने हकूक़ के लिए सिर्फ ऊंची बात भी करते हैं तो हमें दहशतगर्द कहा जाता है। ये जो है ये हमारे साथ जुल्म है, ज़्यादती है, हम इसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। और ये इंशाल्लाह इनका इरादा यही है कि दुनिया में ये अपने आप को मनवाएं और UNO में अपने आप को मनवाएं, UNO भी माने। और वो तभी होगा जब आप लोग, सबसे पहले ये हमारा होम ग्राउंड है, अटक हमारा होम ग्राउंड है। घर से जब हम अपने आप को मजबूत करेंगे, इनको हम अपने घर से मजबूत करेंगे, जब ये घर से मजबूत होंगी तो इंशाल्लाह अज़ीज़ ये फैल जाएंगी। और अटक माशाल्लाह, अटक की तारीफ मैंने पढ़ी है, सुनी भी है और देखी भी है कि अटक से जो तहरीक उठती है वो कभी खता नहीं होती। ये कमरे से उठी है, इंशाल्लाह अज़ीज़ ये दुनिया तक ले जाएगी। और हम भी इनके साथ हैं। मेरा ताल्लुक उस गांव से है जिस गांव से खादिम रिजवी उठा था। हमारा गांव भी तारीखी है, हमारी तरीके के लिए भी कभी खता नहीं गए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सब ने इनका साथ देना है और हम भी इनका साथ देंगे। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कमरंग अता फरमाए। मोहतरमा ताहिरा एजाज साहिबा, नेशनल ह्यूमन राइट्स की चेयरपर्सन, जनाब
एजाज साहब, अपने रियाज हुसैन शाहिद साहब, और सबसे बढ़ के सईद साहब जो अभी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पंजाब मुंतखब हुए हैं, और आप तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। चूँकि आप सब लोग नए हैं और मेरे लिए तो बिल्कुल ही नए हैं, तो मैं कुछ ऐसा अर्ज करना चाहता हूँ कि आपको पता चले कि मोहतरमा की शख्सियत कैसी है और NHR का मकसद क्या है। बहुत से दोस्तों ने बातें की, बड़े अच्छे अंदाज से डिस्क्राइब किया। मैं आपको बताऊं कि मैं सोचता था कि अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा है किसी और मकसद के लिए, और इंसान दुनिया में आके किसी और दौड़ में लग गया है। यानी कि वो चीज़ तो इंसान भूल ही गया कि जो असल मकसद था कि आप में से अच्छे अमाल कौन करता है। अच्छे अमाल जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये नहीं है। अच्छे अमाल ये हैं कि आप टोटली अपनी ज़िंदगी में कैसे हैं, आप दुनिया को कितना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और आप दुनिया को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये चीज़ आपके अच्छे अमाल के खिलाफ जाती है। मैंने देखा कि मैं ज़्यादा अरसे से चेयरपर्सन साहबा से वाकिफ़ नहीं था। मैंने देखा सैलाब आया ये मुजफ्फरगढ़ और तौसा, डेरा गाजी खान वगैरह में, तो यकीन करें कि दिन रात इन्होंने एक कर दी। इनको नहीं पता था कि मेरे बच्चे किधर हैं, मेरे चौधरी एजाज साहब का क्या हाल है। बस गाड़ी लेके निकली, जहां तक इनकी पहुंच हुई है पहुंच गई। और एक तो होता है लोग नाम बनाने के लिए करते हैं, इन्होंने अपनी कोई तस्वीर नहीं बनाई। हाँ, इतना जरूर करती थी कि जो चीजें दे रही होती थी उनकी अगर वीडियो या तस्वीर इस लिहाज से बनती कि जो मुतासरा बंदा है उसकी इज्जत नफ्स भी मजरूर ना हो, और ये भी पता चले कि जो कुछ ये दे रही है वहां तक असल जगह तक पहुंच रहा है। मैंने उन्हें वहां देखा। फिर इन्होंने ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का ऐसा बनी, कुछ अर्सा पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। फिर इन्होंने महसूस किया कि ये सिर्फ जो है ना कागजी हेर फेर है, उस तरीके से इंसानियत की खिदमत नहीं हो रही। तो जिस तरह आपके सामने नेशनल इसका सब लोग UNO का जिक्र हुआ कि UNO नाम तो लेते हैं यूनाइटेड नेशंस का, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का तस्वर है, सिर्फ नाम है। यूनाइटेड नेशंस का काम नहीं किया जाता। तमाम कौमें उसमें शामिल नहीं है कि उनकी फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए। तो इन्होंने सोचा कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि जिसमें कोई मजहब भी आड़ ना बने, कोई सियासी पार्टी भी आड़ ना बने, कोई हुकूमत भी आड़ ना बने, बल्कि मैं सबके लिए करूं। अभी रियाज हुसैन शाहिद साहब बात कर रहे थे कि हमारा मकसद ये है कि जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है सारी दुनिया में, और मुसलमानों के साथ देने वाला कोई नहीं, हम उस जुल्म को रोकें। लेकिन अपनी चेयरपर्सन साहबा जो है उनकी सोच बहुत ज़्यादा वसी है, बहुत ज़्यादा वसी है। वो मुसलमानों की बात नहीं करती, वो कहती है कि जुल्म जिसके साथ हो रहा है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो यहूदी है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, अगर उसके साथ भी जुल्म होगा हम उसके साथ भी खड़े होंगे। चाहे कोई हिंदू है, चाहे किसी मजहब से ताल्लुक रखता है, चाहे किसी फिरके से ताल्लुक रखता है, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखता है, हम ये नहीं सोचते कि यार मेरी पार्टी कोई और है और जो मजलूम है उसकी पार्टी और है। सबसे पहले हमारी ये कोशिश होती है कि हम मजलूम की जो है ना दाद रसी किस तरह करें, उस पर जो जुल्म हो रहा है उस पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। अभी आप देख लें, अगर हम बात ज्यादा करते हैं फिलिस्तीन की या कश्मीर की, उसका मकसद ये नहीं होता कि वहां मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है हम इसलिए जो है उसके लिए खड़े होते हैं, बल्कि उसके असल मकसद ये होता है कि वहां इंसानियत के साथ जुल्म हो रहा है। 5 महीने में आप देखें कितना जुल्म हुआ है कि यहूदियत की, ईसाइयत की कोई तारीख जो है ना इसकी अक्कासी नहीं कर सकती कि इससे पहले ऐसा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप जिंदगी देखें कि 27 गज़वात हुए और बहुत ज्यादा ऐसी लड़ाइयां लड़ी गई जिनमें नबी पाक शामिल नहीं हुए, और टोटल जो कुफार की तादाद आती है मेरे ख्याल में 250 या 300 आती है जो वो मारे गए हैं।
मुसलमानों ने कभी ये नहीं किया कि वो किसी को जो है ना मार के उस पर कब्जा करें। मुसलमानों ने हमेशा अपने किरदार पेश किया है, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम जो है ना मुसलमान जरूर हैं, लेकिन सबसे पहले हम इंसान हैं। और हमारी सोच यही है कि इंशाअल्लाह हमने जहां भी इंसानियत में किसी के साथ जुल्म हो रहा होगा, छोटे लेवल से लेके ऊपर वाले लेवल तक हम वहां जाएंगे। और सिर्फ 6-8 महीने हुए हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स के वजूद को। मैं आपको बताऊं, ये बात करनी बहुत जरूरी है कि जून 2023 में नेशनल ह्यूमन राइट्स की बुनियाद रखी गई, जो सिर्फ पाकिस्तान के लेवल पे थी, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमारी तंजीम काफी हद तक मुकम्मल हो चुकी है। और 8 महीने के टाइम में हमने न सिर्फ पाकिस्तान में अपनी तंजीम साजी मुकम्मल की, बल्कि आज हम 14 ममालिक में पहुंच चुके हैं। और मोहतरमा ताहिरा एजाज साहबा जो है वो अभी अनकरीब इंशाअल्लाह, ये जो बात हो रही थी ना रजिस्टर्ड कराने की, ये बात हो रही थी कि इंटरनेशनली हम रजिस्टर्ड कराने जा रहे हैं उन ममालिक में जिनमें हमने अभी काम शुरू किया है। वरना पाकिस्तान में हम 8 महीने से रजिस्टर्ड हैं और बड़े अच्छे अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। अभी मोहतरमा निकल रही है इंशाअल्लाह कुछ अरसे में, और पूरी दुनिया में रजिस्टर्ड कराने के लिए ये 15 ममालिक हो चुके हैं, हम पूरी दुनिया तक जाएंगे। और इंशाअल्लाह ये हमारा माटो है, जहां किसी भी मजहब के खिलाफ, किसी भी मुल्क के खिलाफ, किसी भी जालिम ने किसी को मजलूम समझ के, गरीब समझ के, कमजोर समझ के जुल्म किया, तो इंशाअल्लाह नेशनल ह्यूमन राइट उसके दियो रास्ते की सबसे पहली रुकावट बनेगी। बस मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, और आपसे ये उम्मीद रखूंगा कि अगर आपको हमारा मिशन अच्छा लगा तो आप हमारे दस्तों बाजू बने। हमारी तंजीम ये नहीं करती कि कौन चेयरमैन है, कौन वाइस प्रेसिडेंट है, कौन प्रेसिडेंट है, कौन चेयरपर्सन है। हमारी तंजीम सबको इज्जत देती है और एहतराम देती है। हाँ, ये जो ओहदे बनी हुई है ये इसलिए होते हैं कि आपको पता है कि मैनेजमेंट चलाने के लिए ये जरूरी होते हैं। बाकी हम सब बराबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरीके से हम बराबरी की, मुसावात की बात करते हैं, तंजीम में भी हम इसी तरह बराबर हैं। और दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने मिशन में कामयाब करे और हमें पूरा इखलास के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। आप सबका बहुत शुक्रिया।